ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀ ਕਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax ਪਲਸ by ਪਲਸ c। ਤੇ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, q ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰ ਕੇ a b ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ a ਜਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਟਾਈਪ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ z ਇਕੁਅਲ ਟੂ px ਪਲਸ qy ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ pq ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ pq ਹੋਏਗਾ ਟਰਮ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, z ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax ਪਲਸ by ਪਲਸ c। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਆ ਗਈ, q b ਆ ਗਈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਫਸਟ ਸੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਮੇਨ ਜੋ ਚਾਰ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ 4 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਥਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਥਰਡ ਹੋਏਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ p q z ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ p ਤੇ q ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, p q z ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ x y ਨਾ ਹੋ। ਇਹ 'ਚ ਇਕੱਲਾ p q ਹੈ, ਇਹ 'ਚ z ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ p q z ਹੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, p ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ z q। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, p ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ z q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਟਰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ p q z ਆ। p q z ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ, z ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੇ। z ਇਕੁਅਲ ਟੂ h ਆਫ u, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ u ਲੈ ਲਿਆ, ਵੇਅਰ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਲਸ ay। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ z ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ u ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇਅਰ u ਜੋ ਹੈ ਉਹ x ਪਲਸ ay ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ u ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ u ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਕੱਲਾ u ਹੋਊਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ u ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਵੇਰੀਏਬਲ u ਹੋਊਗਾ, x y ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ u ਸਾਈਨ u, ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਕੱਲਾ u ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ p ਕੱਢਾਂਗੇ, p ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ x। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ u ਇੰਟੂ ਕਰਲੀ u ਬਾਈ ਕਰਲੀ x, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਰਲੀ z ਬਾਈ ਕਰਲੀ u ਬਾਈ ਕਰਲੀ x। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ u ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ
जे अपने कोल z जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दो वेरिएबल का फंक्शन तो करली z बाय करली x कितना होगा इस 2x क्योंकि y कांस्टेंट सपोज करना अपन जे आप dz बाय dx करांगे कितना है जी ये आएगा 2x प्लस 2y dy बाय dx ये चीज बनेगी। ये फर्क आ बहुत पार्शल डेरिवेटिव हो आएगा तो टोटल डेरिवेटिव हो आएगा जे दो वेरिएबल नहीं क्योंकि पार्शल डेरिवेटिव दे विच जे x ना आप पार्शल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होएगा जे आप टोटल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वाई वेरिएबल तो फर्क बहुत है इन्होंने। पर एक गल दिमाग लाओ जे अपने कोल Z दे विच कला एक ही वेरिएबल होवे दो ना हो Z दे विच इको वेरिएबल होवे मतलब वाई ना होवे जे आपां हुण इह च करली Z बाय करली X कढीए अते dZ बाय dx कढीए की यह सेम नहीं आऊगा आंसर। फर्क हैगा ये भी डेरीवेटिव है भी डेरीवेटिव फर्क की हैगा कि यह डेरीवेटिव कढ़न लगे आप वाई कांस्टेंट बनना इस वाई वेरिएबल होगा जे वाई होवे ही ना फिर जे वाई ना होवे फिर तो एको मतलब फर्क तो वाई करके ही है इत्थे वाई कांस्टेंट इत्थे वाई वेरिएबल जे वाई ना होवे फिर तो सेम चीज़ आऊगी जिवें वाई नहीं हैगा तो ये भी सेम चीज़ है मतलब जे Z एक वेरिएबल का फंक्शन है तो पार्शल डेरिवेटिव अते टोटल डेरिवेटिव ये आंसर सेम होणगे मतलब तुसी इस केस दे विच Z U का फंक्शन चाहे करली Z बाय करली U फाइंड कर लो जी चाहे dZ बाय du फाइंड कर लो ये जिहड़ी मर्जी वैल्यू फाइंड कर लो दोनों सेम होणगे क्योंकि एक वेरिएबल दे विच पार्शल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव में फर्क नहीं सेम ही आउणगे आंसर। तो इस केस Z जो है एक वेरिएबल का फंक्शन U ही है U पर डिपेंड कर रहा गल तो ये आप पार्शल डेरिवेटिव की थां ते टोटल डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं नंबरिंग वन कॉल एंड जो Q है वो करली Z बाय करली Y होंदा ये भी आप करली Z बाय करली U इंटू करली U बाय करली Y लिख लिया ये आ गया करली Z बाय करली U बाय करली Y ये आ गया हूँ बिल्कुल सेम करली Z बाय करली U नूं आपां dZ बाय du लिख सकते हैं मतलब जो टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन होंगे ये उन्हें तक सेम होंगे Z भी यही मनना आप X भी U भी यही सपोज करना P की वैल्यू भी हमेशा यही आऊगी टाइप थर्ड के क्वेश्चनों ते Q की वैल्यू भी हमेशा यही आऊगी हुण ये P ते Q आप स्टेटमेंट च भर देना देखो ध्यान नाल करना किवें आपां ने हमें P ते Q की वैल्यू नंबरिंग 1 च भरांगे therefore 1 becomes P की वैल्यू भरती है अपने dZ by du का होल स्क्वायर माइनस ZA dZ by du इज इक्वल टू 0 ये करना की है वो देख लो dZ by du the whole square is equals to AZ dZ by du उधर ले गए जदों आपां इहदे विच वैल्यू भरांगे इस तो बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी टोटल डेरिवेटिव ने Z ते U दे विच ये वेरिएबल सैपरेट करने वेरिएबल सैपरेट होणगे dZ अपॉन Z इज इक्वल टू A du जो वैल्यू पुट करांगे तो Z ते U च वेरिएबल सैपरेट होके फिर इंटीग्रेशन होगी इस टाइप थर्ड दे विच हमेशा इदां ही होगा जी फिर आपने इंटीग्रेट करता है दोनों पासे
जो इंटीग्रेट किया dz बाई z इज इक्वल टू a du, ये बन गया log mod z au प्लस b। log हटा देवांगे, log हटाया तो mod z आ गया e दी पावर au प्लस b, e दी पावर au, e दी पावर b अलग कर लिया। ये पहला किया है कॉन्स्टेंट की पावर कॉन्स्टेंट लवांगे, नवा कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो z mod कितना आ गया c e दी पावर au, वेयर e दी पावर इनू आपने c लिया। मॉड जो आप हटाने होने हैं ध्यान च होगा, इधर प्लस माइनस आएगा सी ई दी पावर ए यू, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, कोई भी ले लो, मैं टेक कर रहा, मैं ले रहा जेड इक्वल टू सी ई दी पावर ए यू की वैल्यू भर देनी है। यू आप मन्निया सी एक्स प्लस ए वाई, चाहे दोनों ले लो, थोड़ी मर्जी है, इस तरह मर्जी कर जाए, प्लस मान लो चाहे माइनस मान लो, मर्जी मान लो, चाहे दोनों पा लो। ये अपना आ गया, देखो विच चैक कर लो कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने आ रहे हैं। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दो आ रहे हैं, एक ए आ रहा एक सी आ रहा। जिस सोल्यूशन के विच दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होण उहनूं आपां कंप्लीट सोल्यूशन कहने हैगे आ, तां ये बन गया विच इज कंप्लीट सोल्यूशन। टाइप थर्ड दे विच कंप्लीट सोल्यूशन हमेशा इदां निकलूगा। बस थोड़ा जिहा यह है कि इंटीग्रेशन पार्ट बहुत ध्यान ना करना है, बाकी तो काम ठीक है जी। हुण इस तो बाद सिंगुलर किवें कढने हैगे ने अते जनरल सोल्यूशन किवें कढना, है पुराना कंसैप्ट। ये तकरीबन सारा सिंगुलर किवें कढांगे आपां, जे पहला करदे आ रहे एक पासे ले आवांगे, उहनूं एफ एक्स वाई जैड मान लांगे। जो सॉल्व कर रहा मैं देखो, अगे फाइंड कर रहे हैं आप सिंगुलर सोल्यूशन। एक पास लिया लेट एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड माइनस सी ई दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई। फिर आपने कर ली एफ बाय कर ली ए करांगे जी, जिहड़े आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होणगे उहदे विद रिस्पैक्ट टू आपां पार्शियल डेरिवेटिव करने ने। ये आ गया अपने कोल 0 माइनस सी ई दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई, नाल डेरिवेटिव करांगे एक्स प्लस 2 ए वाई, एंड कर ली एफ बाय कर ली सी किता 0 हो गया, माइनस ई दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई। फिर पुट करना होंदा, इस तो बाद एफ एक्स वाई जैड नूं 0 पुट करना होंदा, कर ली एफ बाय कर ली ए 0 पुट करना होंदा, कर ली एफ बाय कर ली सी 0 पुट करना होंदा। ये 0 पुट किया, दिस इंप्लाइज जेड माइनस सी ई दी पावर ए प्लस एक्स ए वाई इक्वल टू 0। दूजा आ गया माइनस सी ई दी पावर ए प्लस एक्स ए वाई एक्स प्लस 2 ए वाई 0 हो गया। तीजा किता माइनस ई दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। मैं तिना विचों आप सॉल्व करना होंदा हैगा, मतलब आप तिना विचों एक अजिही इक्वेशन बनानी होंदी है जो जैड भी आवे अते आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ना आउण। पर एक गल गौर देखो, जी टाइप फस्ट की सी, टाइप फस्ट की होंदा सीगा उस -1 इक्वल टू 0 बनता सीगा। जे ध्यान छो टाइप फस्ट जी आ टाइप की है आप क्या ये पॉसीबल नहीं है, जे पॉसीबल नहीं है तो इस केस क्या कि टाइप फस्ट के सिंगुलर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पर थोड़ी होर भी गल देखो, यह कंसैप्ट कि ई दी पावर जिन्नी मर्जी होवे, गल ध्यान रखनी, ई दी पावर एक्स ई दी पावर जो मर्जी होवे, ये हमेशा आंसर पॉजिटिव आता होता है।
मतलब ई दी ई जिहड़ा हुंदा हैगा इहदी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 हुंदी है। जे ई दी पावर तुसीं पॉजिटिव भी लै लो तां भी पॉजिटिव आऊगा आंसर। जे ई दी पावर 0 मान लो 1 होगा तां भी पॉजिटिव आएगा। ई दी पावर जे नैगेटिव भी लै लवो तो 1/2.7 इंच स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा। जे नैगेटिव पावर भी लवांगे तो भी आंसर की आऊगा पॉजिटिव ही आऊगा। मतलब ई दी पावर जिहड़ी मर्जी लै लो हमेशा आंसर पॉजिटिव होएगा। जे हमेशा आंसर पॉजिटिव होएगा मतलब ई दी पावर जो मर्जी होवे ये कदे 0 नहीं बन सकता, इक्वल टू 0 नहीं होता, हमेशा 0 तो वड्डा होता। तो ये लिखांगे विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ई दी पावर एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता। जिवें उरे क्या सी ये पॉसिबल नहीं है तो सिंगल सोल्यूशन नहीं बनना। उरे यही कंसैप्ट है, जे पॉसिबल नहीं है तो आप कहांगे देयरफॉर इट हैज नो सिंगुलर सोल्यूशन। हुण ये गल बनती है कि जे सिंगल सोल्यूशन नहीं बन रहा कि हरेक क्वेश्चन सिंगल सोल्यूशन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन करांगे आप अगे। टाइप थर्ड में कंपल्सन नहीं है कि सिंगल सोल्यूशन आएगा, ये आ भी सकता नहीं भी आ सकता। एक क्वेश्चन का आप किया कि जो सिंगल सोल्यूशन नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन आप होर करांगे जिहदे सिंगुलर सोल्यूशन आ रहा होगा। वो देखो ये तो पहला आप जनरल सोल्यूशन कर लीए फिर अगे नैक्सट क्वेश्चन करांगे। जनरल सोल्यूशन भी आपने लैट करना होंगे, चलो एफ एक्स वाई जैड इज इक्वल टू जैड माइनस सी ई दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई। तो लैट करना होंगे किसी एक कॉन्सटेंट नूं दूजे का फंक्शन सपोज करना होंगे। ये फंक्शन सपोज कर लिया अपन। जेड़ा एफ एक्स वाई जैड है ये बन गया जैड माइनस फंक्शन ऑफ ए ई दी पावर ए प्लस एक्स प्लस ए वाई। हुणे किता एक तो आप कर ली एफ वाई कर ली ए कढ़ांगे ये 0 हो गया माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट एज इट इज। फिर आप पुट करना होंदा हैगा एक तो एफ एक्स वाई जैड 0 पुट करना होंदा, एक कर ली एफ वाई कर ली ए 0 पुट करना होंदा। देयरफॉर जेड माइनस जी ए दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई 0 नंबरिंग 2 ले लो एंड माइनस जी ए दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई एक्स प्लस 2 ए वाई प्लस जी डैश ए दी पावर ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। तो आप कहांगे देयरफॉर सेकंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट जनरल सोल्यूशन। ये पुरानी कंसैप्ट नहीं। फिर एक क्वेश्चन आप टाइप का होर करना हैगा जिहदे विच अपने को सिंगुलर सोल्यूशन आवे। तो देखो वो क्वेश्चन कर रहे हैं जेड स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल्स टू 1। इन एक पासे ले लो जी जेड स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। एक गौर ना देखो ये सिर्फ पी क्यू तो जैड ही वेरिएबल ने क्योंकि एक्स वाई नहीं है।
तो ये टाइप थर्ड विच कवर होएगा। जो टाइप थर्ड विच कवर होएगा तो लैट करांगे आपां जो z है वो फंक्शन ऑफ u वेयर u जिहड़ा हैगा वो x प्लस ay हो गया। देयरफॉर p हुंदा अपने कोल करली z बाय करली x, ये हो गया जी करली z बाय करली u इंटू करली u बाय करली x। इनू आपां डी जैड बाई डी यू लिख सकते जी, पिछले लिखा सीगा ये 1 हो गया। एंड फिर क्यू कटांगे आपां करली जैड बाय करली वाई करली जैड बाय करली यू बाय करली वाई, इनू आपां डी जैड बाई डी यू कह सकते हैं तो यदी वैल्यू ए आएगी। हुण ये दोनों वैल्यू आपां नंबरिंग 1 च पुट करती, देयरफॉर 1 becomes z square dz by du the whole square plus a square dz by du the whole square plus 4 minus 1 equals to 0। हुण इहदे विचों करना की है आपां ने dz by du की वैल्यू कट के फिर वेरीएबल सैपरेट करके फिर इंटीग्रेशन होएगी। चलो इन्हें एक पासे ले जाओ या मल्टीप्लाई कर लो जेड स्केयर ये चो कॉमन कर लो 1 प्लस ए स्केयर करके डी जेड बाई डी यू कॉमन निकल गया प्लस 4 जेड स्केयर इक्वल टू 1 उधर ले गए। हाँ यही आ गया जेड स्केयर 1 प्लस ए स्केयर डी जेड बाई डी यू स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 जेड स्केयर। हुण इस डी जेड बाई डी यू की वैल्यू कढ़नी है, ए टर्म चक के नीचे ले जाओ सारी। दिस इंप्लाइज ये आ गया डी जेड बाई डी यू द होल स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 जेड स्केयर अपॉन जेड स्केयर 1 प्लस ए स्केयर। जो स्केयर हटावांगे तो प्लस माइनस आएगा जी। ठीक, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस चाहे दो ही ले लो, फिर आप सॉल्व कर लवांगे। टेक पॉजिटिव साइन लिया आपने, रूट अलग अलग कर लिया जी। इन्हें एक पास लिया रूट ऑफ 1 प्लस ए स्केयर जेड अपॉन वेरीएबल सैपरेट कर लीजिए अपने। यही टर्म सारे इधर आ गए, डी यू चक के उधर रह गए। फिर इंटीग्रेट बोथ साइड करता अपने, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया जी। मेरी पुटिंग कर सकते हैं, पुटिंग करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो। 1 माइनस 4 जेड स्क्वायर टी पुट कर लो, जो एक फॉर्मूला होंगे कि एफ एक्स की पावर एन नाल एफ डैश एक्स पिया हो इंटीग्रेशन, ये होंदा है एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 प्लस। किवें ये टर्म चक के उपर ले जाओ 1 माइनस 4 जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। इसका डेरीवेटिव कितना बनेगा विच वाले का, विच वाले का डेरीवेटिव नाल पिया होवे, विच डेरीवेटिव कितना बनेगा विच वाले का, ये बनेगा -8 जेड। तो -8 ना मल्टीप्लाई कर लवो तो -8 नाल डिवाइड कर लवो। बाकी जिस तरह मर्जी इंटीग्रेशन कर सकते, ए यू प्लस डी आ गई इंटीग्रेशन। बस इन्हों कुछ थोड़ी जी इंटीग्रेशन होएगी, इंटीग्रेशन ध्यान ना करनी है।
फिर फॉर्मूला बन गया जी, ये आ गया -√1 + a² / 1 - 4z² की पावर ½ upon ½ is equals to u plus b। फिर 4 ਚੱਕ के उधर ले जाओ, ये भी अंडर हो गया जी। 4u + 4b। ये अपनी मर्जी है कि कॉन्सटेंट इंटू कॉन्सटेंट करांगे, ये नवा कॉन्सटेंट सपोज कर सकते हैं। इस करके आंसर च कन्फ्यूज नहीं होना है कि उरे कॉन्सटेंट जिहड़ा हैगा कि पिछे कॉन्सटेंट जो मर्जी आ सकता, इस आंसर च कन्फ्यूज नहीं होना कि आंसर की आ रहा। मैं 4b लेके चल रहा, मैं नवा कॉन्सटेंट नहीं सपोज कर रहा। ये जो Z कढ़ लईदा होंदा पहला, फिर बाद चो आपां सिंगल सोल्यूशन फाइंड करना होंदा। पहला Z कढ़ लईदा होंदा, किवें स्केयरिंग बोथ साइड की जी आपां ने। स्केयरिंग बोथ साइड, जो स्केयरिंग की ये आ गया 1 + a² 1 - 4z² इज इक्वल्स टू 4u। u की वैल्यू भर लो जी, u सीगा x + ay, 4 ना मल्टीप्लाई करता, इदा लगी रूट हटा लेना विचों। ये अपने को आ गया सिंगुलर, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन बन गया। कंप्लीट सोल्यूशन क्यों बन गया जी? दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, एक ए ते एक बी। इट इज कंप्लीट सोल्यूशन। हुण सिंगुलर सोल्यूशन किदां फाइंड करना हुंदा? पहले एक पासे लियावांगे, लेट कर लवांगे f(x, y, z) इक्वल्स टू 1 + a² 1 - 4z² माइनस 4x 4ay 4b का होल स्केयर ते करली f बाय करली a कढ़िया पहला अपने, जो a ना डेरिवेटिव करांगे बनेगा 2a, बाकी कॉन्स्टेंट आ सारा जी। ये भी 2 अगे आ गया, 4x 4ay 4b, इत्थे आ गया 4y। फिर करली f बाय करली b कटांगे, ये सारा कॉन्स्टेंट 0 हो गया। -2 4x 4ay into 4। इस तो बाद 0 करने होंगे सारे अपने। पुट करना होंदा जी f(x, y, z) नूं 0 पुट करना होंदा। करली f बाय करली a 0 पुट करना होंदा, करली f बाय करली b 0 पुट करना होंदा। ये 0 पुट किया जी, ये आ गया 1 + a² 1 - 4z² -4x + 4ay + 4b का होल स्केयर इक्वल टू 0। एंड इनू 0 पुट किया अपन 2a 1 - 4z² -2 4x 4ay + 4b into 4y इक्वल टू 0। तो 0 पुट किया -2 4x + 4ay + 4b into 4 इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू कढ़ लवो 4x + 4ay + 4b, ये 0 आ जाएगी। -8 चक के उधर लैके 0 हो गया। ये वैल्यू आप नंबरिंग 2 च पुट कर लेने। Therefore 2 becomes, ये आ गया 1 + a² 1 - 4z², ये 0 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यह टर्म भी उधर लैके 0 कर दो जी।
ये आ गया इट इज़ सिंगुलर सोल्यूशन। ये कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है तो Z विच इक्वेशन है। ये जीरो आप कर सकते उधर ले जाके बिकॉज ये नॉन जीरो है। 0/नॉन-जीरो जो होंगे वो जीरो होंगे। चलो ये टर्म इस बार जनरल सोल्यूशन कढ़ना आप वो भी सौखा ही है जी। जनरल सोल्यूशन नैट कर लो एक तो जोड़ा बी है वो फंक्शन ऑफ जी ए सपोज कर लो, देयरफॉर f(x,y,z) बन जाएगा 1 + a² 1 - 4z² -4x 4ay + 4g of a का होल स्क्वायर। Therefore करली f by करली a आ गया 2a1 - 4z² -2 4x 4ay 4 फंक्शन ऑफ a इंटू डेरिवेटिव किया 4y + 4g डैश a। फिर पुट कर लिया इस तो बाद जीरो पुट कर ले तो ये आ गया 1 + a² 1 - 4z² -4x 4ay + 4ga होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नंबरिंग 3 पा लो। एंड 2a1 - 4z² -2 4x 4ay 4g of a 4y 4g dash a is equal to 0. Therefore 3 and 4 represent general solution. तो सिंगुलर जनरल तो ही ने बस मेन कंप्लीट सोल्यूशन च फर्क होगा हर टाइप के विच। जो ठीक है टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड के सिंगुलर सोल्यूशन आ भी सकता तो सिंगुलर सोल्यूशन नहीं भी आ सकता। तो ध्यान नाल क्वेश्चन करने टाइप थर्ड कंप्लीट कर लियो जी। कोई प्रॉब्लम होई तो पुछ लियो जी। थैंक यू।